A warm welcome to all in our channel Mantra of the Biology. I'm Varun Agarwal. You can call me a biology faculty. You can call me a biology facilitator, and you can call me a person who help you out to meet with the soul of biology. When I started our journey last year in October 2019. So when I started, I was just new and I was just unaware about the many of things. So I just started our journey. I got some very good response from my viewers. But slowly and slowly throughout the journey, I learned a lot of things. So I just slow and even I tried like I tried to change my structure, my format, which make it we just try to make specific for a net aspirant. But then I feel ki like we have to be changed and in a broader way. Okay, so that's why I just divided I just divided the whole course into two type: the net foundation course and net as rapid aspirant courses. Okay, so this is a part of the net as foundation courses target 2022. Okay, the specific for 11th students, even like 12th student can also watch it, but 12th student they also have some burden of board exam. That's why they generally they could not be focused more on the net examination right now. But the those are have been those have has been taken a drop, and they're like there has been taken a drop, or those have been tried last year, but because of that they could not be successful and they could not achieve their target, so they can also watch it. Okay, so that's why, to make it the more specific, to attract the more target, more crowd, okay, and to deliver a good content, so that's why I just changed my format. Okay, it's nothing like ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ ज्यादा मैंने change कर दिया है. Like I just try to be focused more and more on the knit content, जिसमें ज्यादा डायग्राम्स, वैसे डायग्राम एनिमेशन तो मैंने पहले भी बहुत यूज करता था. जितना पॉसिबल हो सके डायग्राम एनिमेशंस क्वेश्चन विद द टॉपिक्स, जितना हो सके पॉसिबल मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा इस बार से. ओके, लाइक चलिए, let's start with the morphology of the flowering plant. The topic is a leaf modification. Okay, this is lecture number 13. So in the last lecture, what we have studied? In last lecture we have studied about the compound leaf introduction, and again the types of compound leaf. There are the two types of compound leaf: the palmate and the pinnate compound leaf. Okay, then the modification in leaf and leaf part that we just started. Okay, and from this lecture we just continue this topic: the modification in a leaf and leaf parts. Okay, pinnate is just nothing. Pinnate is the incision, like if the incision reaches towards the midrib, so that's why the leaf it converted into the different leaflets. Okay, in a palmate structure, the incision is reached toward the petiole. So in that palmate also the leaf it converted into the different leaflets. आप यहाँ देखेंगे आपको क्लियरली पिन्नेट और पामेट क्लियरली आपको दिखाई देगा. और पामेट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है नीम. नीम सबसे बेस्ट एग्जांपल है. Okay, so if you look just here, if अगर आप यहाँ पे देखेंगे, okay, तो आपको like वैरायटी दिखाई देती है. मतलब लीफ, कंपाउंड लीफ में ये like सेम वैरायटी आपको सिंपल लीफ में भी दिखाई देती, बट वहां पे इंसाइजन था वो मिडरी बे पेटियोल तक नहीं पहुंचा था. जस्ट इंसाइजेशन बना था लेकिन पहुंचा नहीं था. जब पहुंचा नहीं था तो लीफलेट्स में डिवाइड नहीं हो पाए थे. ओके, सॉरी, जो मैंने नीम का बोला था, नीम का जो मैंने आपको बोला था. ओके, सो वो बेसिकली आपका जो मैंने नीम का बोला था, तो वो बेसिकली आपका पिन्नेट का एग्जांपल है, पामेट का नहीं. सॉरी. ओके, चलिए, तो अब यहीं से हम ये अपना जो टॉपिक है मॉडिफिकेशन इन द लीफ एंड लीफलेट्स, लीफ पार्ट्स, आज यहीं से टॉपिक अपना शुरू करते हैं. ठीक है, अब चलते हैं आगे, जिसमें हम मॉडिफिकेशन इन लीफ और लीफलेट्स, मतलब लीफ और लीफ पार्ट्स में क्या क्या मॉडिफिकेशन है, हम उनके बारे में देखेंगे कि लीफ में और लीफ मॉडिफिकेशन में हम क्या क्या देख सकते हैं. चलिए. Okay, so there are the few modification of petiole and leaf stalk. Listen, हमने like लास्ट लेक्चर हम स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा था कि लीफ में और इटसेल्फ लीफ के पार्ट्स में भी बहुत मॉडिफिकेशंस होते हैं. लीफ में तो मॉडिफिकेशन है, इवन जो लीफ के जो पार्ट है लाइक पेटियोल है, ओके, लाइक स्टिप्यूल्स है, उसमें भी आपको वैरायटी ऑफ मॉडिफिकेशन दिखाई देते हैं.
क्लियर। तो ये जो वैरायटी ऑफ मॉडिफिकेशन है जो पेट्रियोल में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो मॉडिफिकेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट इट मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। हम पहले पेट्रियोल स्टडी करेंगे, फिर हम स्टिप्यूल्स पे मूव करेंगे, फिर हम खुद एक लीफ के बारे में स्टडी करेंगे, जो लीफ का लेमिना। देखिए लीफ में अगर आपका पेट्रियोल आपने स्टडी कर लिया, लीफ के स्टिप्यूल्स आपने स्टडी कर लिया, उनके मॉडिफिकेशन स्टडी कर लिया, तो बचा क्या, लीफ लेमिना बचा। तो लीफ लेमिना भी लाइक कन्वर्टेड हो सकता है इन वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर, इट कैन बी मॉडिफाइड इन वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर। सो यहाँ पे जो पेट्रियोल और ये जो पेट्रियोल है, ओके, दैट पेट्रियोल इट मे बी मॉडिफाइड इन अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखिए पेट्रियोल का जो बेसिक पर्पस होता है, वो उसका बेसिक पर्पस क्या है, जो बेसिक फाउंडेशन पर्पस है वो है लीफ लेमिना को, उसके लीफ लेमिना को स्टेम से कनेक्ट करना, यही उसका बेसिक पर्पस होता है। ये ऐसा भी कह सकते हो लीफ लेमिना को रेकिस से कनेक्ट करना, यही बेसिक पर्पस होता है पेट्रियोल का। लेकिन अगर वो अपना पर्पस ओके चेंज कर दे और किसी दूसरे पर्पस में कन्वर्ट कर दे, उसको मॉडिफाइड कर दे अपने पर्पस को, तो वही मॉडिफिकेशन हम स्टडी करेंगे। अब वो मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं, कई बार ये जो पेट्रियोल होता है कुछ क्लाइंबिंग टेंड्रियल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कई बार ये पेट्रियोल होता है विंग लाइक ऑफ कन्वर्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी ये जो पेट्रियोल होता है इसमें लाइक ये प्रोटेक्शन के पर्पस से अपना काम देता है। सो देयर आर द वेरियस मॉडिफिकेशन इन द पेट्रियोल और लीफ स्टॉक, मतलब लीफ स्टॉक पेट्रियोल का ही दूसरा नाम है। विंग्ड पेट्रियोल, टेंड्रियल पेट्रियोल, ओके, फाइलॉड एंड द फ्लोटिंग पेट्रियोल। ओके, ये वैरायटी ऑफ मॉडिफिकेशंस है जिसको हम अब स्टडी करेंगे। चलिए ओके, सबसे पहला हम स्टडी करेंगे विंग पेट्रियोल ओके बारे में, कि विंग जैसे कि ध्यान कीजिए, जब हम पामेट स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, पामेट कंपाउंड लीफ, तो उसमें एक एग्जांपल आया था लेमन का। तो लेमन की जो लीफ होती है वो यूनिपामेट लीफ का एक एग्जांपल है। तो हमने वहां पे देखा भी था कि उसका जो पेट्रियोल होता है वो लीफ लाइक एक फ्लैटन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लैटन विंग। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए फ्लैटन विंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फ्लैटन विंग में कन्वर्ट हो गया, तो ये लाइक ये ग्रीन होता है, तो दैट्स व्हाई ये फ्लैटन विंग के अंदर कन्वर्ट हो गया। सो इट कैन आल्सो सिंथेसाइज द फूड थ्रू द सनलाइट, okay, with the help of sunlight it also can the absorb the light, it can also absorb the light and can synthesize the food. So best example है लेमन, सिट्रस को लाइक सिट्रस जो बेसिकली उसको साइंटिफिक, जो बेसिकली उसका बायोलॉजिकल नेम सिट्रस है, और लेमन जिसका इंग्लिश नेम है। क्लियर। सो इट्स नॉट अ साइंटिफिक नेम, ओके, दिस इज द बायोलॉजिकल नेम सिट्रस, उसको ऐसे लेमन को इंग्लिश में सिट्रस भी बोला जाता है। सो यहाँ पे जो पेट्रियोल है वो एक लीफ लाइक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, उसके लिए जस्ट एक ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया जिससे वो उसको और फूड बना के दे रहा है। Okay, next the petiole is modified into the thin, okay, the petiole is modified into the thin wing tendril and help to plant climb up। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो टेंड्रियल जो लाइक टेंड्रियल जो पेट्रियोल है, मतलब जो क्या होता है पेट्रियोल क्या होता है, टेंड्रिल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और टेंड्रिल्स में कन्वर्ट होने के बाद में ये इसकी हेल्प से वो प्लांट के ऊपर क्लाइंब अप कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए लैंथीन्स जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। देखिए अपने शायद इंसेक्टिवोरस प्लांट आपको, अगर आप लाइक कभी भी आप फ्लावर गार्डन विजिट करेंगे, यहाँ पे मैंने नॉर्थ में कम देखे हैं लेकिन साउथ में आपको काफी मिल जाएंगे। ओके, एंड जहाँ पे नाइट्रोजन, जिसकी सॉइल में नाइट्रोजन बहुत कम होता है, वहां पे ये इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब उनको सॉइल से नाइट्रोजन नहीं मिलता तो वो वो बेसिकली इंसेक्ट को खाकर अपना नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करते हैं। ओके, इसमें बहुत अच्छा स्टार्टअप भी किया गया था, वही जो वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, दैट इज अ सेपरेट पॉइंट। तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या करते हैं कि जो जो लाइक इंसेक्ट की जो प्रोटीन होती है उसको खाकर अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं। देखिए मैं स्ट्रक्चर समझाता हूँ जो आपको समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ पे देखेंगे ये इंसेक्टिव, ये देखिए ये एक्चुअली दिख रहा है आपको, ये जो लाइक इट्स लाइक स्ट्रक्चर जो बिल्कुल एक तरह का जो स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो पूरा ये एक पिक्चर कन्वर्ट है, मतलब ये पिक्चर देखिए, सॉरी, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा पिक्चर है, जिससे मतलब क्या होता है लीफ लैमिना पिक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ये पिक्चर क्या करता है लीफ को, मतलब एक तरह का कह सकते हो कि एक तरह का एरिया है जहां पे लीफ आके अंदर अट्रैक्ट हो, जहां पे लीफ अंदर आएगा, मतलब एक पिक्चर, मतलब एक ऐसा एक एरिया जहां पे लीफ जहां पे इंसेक्ट अंदर की तरफ आ सकता है। इस पिक्चर के अंदर बहुत सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं और जो उसको डाइजेस्ट कर जाती हैं पूरा। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए पेट्रियोल दिख रहा है आपको, यहाँ से जो पेट्रियोल होता है ये बेसिकली क्या करता है, कुछ टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाता है जो कि इस पिक्चर को सपोर्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर ये सपोर्ट नहीं करेंगे तो पिक्चर गिर जाएगा।
तो एक कहते हैं ना मटका, मटका टाइप का, इट्स द बेस्ट वर्ड, इस मटका टाइप का एक स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देखिए नैप्थिन्स इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर, तो ये नैप्थिन्स अकेला ऐसा एग्जांपल है जिसमें आप वैरायटी ऑफ मॉडिफिकेशन एक साथ देख सकते हैं। जैसे देखिए ये जो पेट्यूल है, ये बेसिकली ये आपको दिख रहे हैं, ये बेसिकली जो थिन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, ये पेट्यूल के मॉडिफिकेशन है। ये जो दिख रहा है ये मटका काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जिसको पिचर कहते हैं, ये लीफ लैमिना का मॉडिफिकेशन है। ये जो दिख रहा है ये लीफ एपेक्स का मॉडिफिकेशन। ये मतलब नैप्थिन्स एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें हम वैरायटी ऑफ मॉडिफिकेशन एक साथ देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे सिर्फ पेट्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसको नैप्थिन्स के लाइक जो नैप्थिन्स के पिक्चर को सपोर्ट देने के लिए ये टेंड्रियोल्स हेल्प करते हैं। ओके, सो इंसेक्टिवोरस बेसिकली प्लांट ग्रो करता है जहां पे नाइट्रोजन नहीं होता, तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को खाते हैं, क्योंकि इंसेक्ट का जो पूरा आउटर एरिया बना होता है, जो इंसेक्ट जो होता है बेटा, उसका जो पूरा आउटर जो कवरिंग होती है वो प्रोटीन रिच होती है, आउटर कवरिंग प्रोटीन रिच होती है। आप चाहे ऑर्थोपोडा का एग्जांपल ले लीजिए, चलिए ऑर्थोपोडा को लाइक जैसे कि बहुत सारे इंसेक्ट का अगर ऑर्थोपोडा में भी यही होता है, जो कॉकरोच की पूरी जो आउटर लेयर होता है वो जो पूरा प्रोटीन का बना हुआ होता है। इसके अलावा वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स आपको और मिल जाएंगे। इंसेक्ट का एग्जांपल, जो इंसेक्ट होते हैं, जो छोटे छोटे जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, वो आपको जो पूरा आउटर एरिया को जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, आउटर लेयर दिखाई दे रहा है, ये प्रोटीन रिच होता है। ओके, लीफ लेमिना बेसिकली मिचर के फॉर्म में मॉडिफाइड होता है और लीफ एपेक्स लिड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि लीफ ये मान के चलो कि ये एक तरह का, मान के चलो एक तरह का पिक्चर है, ठीक है, ये एक तरह का पिक्चर है और ये एक तरह का पिक्चर है और ये बेसिकली क्या है, उसका लिड है। तो जैसे ही अगर इंसेक्ट अंदर आता है तो इंसेक्ट अंदर आते ही अब वो बाहर जा सकता है, ठीक है, तो क्या करता है, उसका लिड उसके ऊपर गिर जाता है। तो लिड गिरने से क्या होता है कि अब इंसेक्ट बाहर नहीं आ सकता, अब आसानी से पिक्चर के अंदर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं आसानी से बैठ के उसका भक्षण करती हैं, उसको खाती है। ओके, चलिए, और जो पेट्यूल होता है बेसिकली टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाता है जो कि पिक्चर को स्ट्रेट रखने में हेल्प करता है। ओके, पिचर बेसिकली मॉस्किटो को ट्रैप करता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की हेल्प से सारे इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं ये लोग। देखिए अब मैं आपको बता रहा था ये पिक्चर है जो कि किसका मॉडिफिकेशन है, ये आपको डायरेक्टली यहाँ देख लीजिए। लीफ आपको लाइक रटने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लीफ ये जो पिक्चर है, ओके, बाद में रटने की रिक्वायरमेंट ही ना, ध्यान रखने की जरूरत, यहीं पे याद कर लीजिए। ये जो पिक्चर है ये किसका मॉडिफिकेशन हुआ, ये पिक्चर मॉडिफिकेशन हुआ लीफ लैमिना का। ओके, और ये जो दिख रहा है आपको ये लीफ बेस का मॉडिफिकेशन हुआ। ओके, लीफ बेस क्या लीफ का जो अपेक्स पार्ट होता है ये उसका मॉडिफिकेशन हुआ। ओके, और ये टेंड्रिल्स का मॉडिफिकेशन हुआ, मतलब पेट्यूल टेंड्रिल्स के मॉडिफिकेशंस हुए। क्लियर? In some plants, petiole perform a function of photosynthesis instead of a leaf. ये फाइलोड का एग्जांपल है। वहां पे था, देखिए हमने अभी तक देखा बेटा कि हमने जो पेट्यूल होता है टेंड्रिल्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे नैप्थिन्स के अंदर है। जो पेट्यूल होता है एक विंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकता है, एग्जांपल लेमन लिया। यहाँ पे फाइलोड जिसमें जो आपका जो पेट्यूल होता है वो बेसिकली लीफ की जगह लीफ की जगह फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ओके, सो जो पेट्यूल होता है वो बेसिकली लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जैसे देखें आप यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये पेट्यूल है ये देखिए लीफ लाइक कन्वर्ट, जो आप पेट्यूल है ये लीफ लाइक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया और ये खुद फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो एग्जांपल है फाइलोड। ध्यान रखना फाइलोड से फाइलोड यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पेट्यूल होता है लीफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। तो फाइलोड के अगर एग्जाम्पल आपने पहले भी देखे हमने, ओके, तो ये वो मॉडिफिकेशंस आपके दोबारा आते हैं, यहीं पे दोबारा स्टडी कर रहे हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखें, ऑस्ट्रेलियन अकासिया का एग्जाम्पल है। ओके, कुछ में पेट्यूल्स क्या होता है थोड़ा स्पंजी हो जाता है, तो जिसकी वजह से वाटर के सरफेस में उसको फ्लोट करने में हेल्प मिलती है। एग्जाम्पल के लिए है आइकॉर्निया वाटर हाइसिंथ। जैसे आप देखिए वाटर आइकॉर्निया मैंने दिखाया था जो ऑफसेट का एक मॉडिफिकेशन है, जिसका पेट्यूल थोड़ा सा क्या होता है कि लाइक स्पंजी हो जाता है और वाटर सरफेस पे आसानी से मूव कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए फोटोसिंथेसिस, अब अगर आप देखें तो लीफ के पार्ट्स के मॉडिफिकेशन के बाद में अगर आप लीफ में मॉडिफिकेशन देखते हैं तो लीफ में भी आपको वैरायटी ऑफ मॉडिफिकेशन दिखाई देंगे, जैसे कि वाटर एंड फूड को स्टोर करना, प्रोटेक्शन करना, क्लाइंब अप करना। ठीक है, हमने स्टिप्यूल्स के मॉडिफिकेशंस वहां पे पढ़ लिए थे, तो अब पढ़ रहे हैं पेट्यूल के मॉडिफिकेशन। अब पेट्यूल के मॉडिफिकेशंस पूरे हो गए, अब है हमारे लीफ के मॉडिफिकेशन। ओके, देखिए सबसे पहला आपके अगर वैरायटी ऑफ लाइक मॉडिफिकेशन देखेंगे, लीफ टेंड्रियल, लीफ स्पाइन, फ्लैसी लीफ, लीफ पिचेस, लीफ रूट। लीफ पिचेस तो वही जो नैप्थिन्स वाला एग्जांपल था, लीफ पिचेस का वही एग्जांपल है।
Okay, basically they are convert into the tendering, climbing as in a pea into spines for defense in a cactus. Cactus के अंदर होता है ना जिसमें जो लीफ होती है वो बेसिकली क्या होता है, स्पाइंस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। बेसिक पर्पस से प्रोटेक्शन ही नहीं होता है, इसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि लाइक वाटर के ट्रांसपिरेशन को कम करना। इसके अलावा पी, अगर आप पाइसम सटाइवा में देखेंगे तो उसकी जो लीफ होती है टेंड्रियोल्स में कन्वर्ट हो जाती है और क्लाइंब अप में जिससे हेल्प मिलती है। ओके, इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो ऑनियन और गार्लिक की जो आप खाते हैं ना, वो एग्जैक्टली लीफ होती है उसकी। और वो लीफ क्या होती है, वो उसमें क्या होता है, मैटर स्टोर हो जाता है जिसको हम फ्लैशी लीफ कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो आप गार्लिक खाते हैं, जो आप ऑनियन खाते हैं, ठीक है, वो जो आप खा रहे हो उसकी लीफ खाते हैं आप, तो उस लीफ के अंदर क्या होता है कि उसकी जो लीफ होती है वो फ्लैशी हो जाती है, मतलब अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेती है। ये अंडरग्राउंड लीफ होती है बेसिकली। लीफ टेंड्रिल जैसे कि जो क्लाइंबिंग में हेल्प करता है, पाइसम सटाइवम एग्जांपल है। लीफ स्पाइन जो बेसिकली लीफ स्पाइन में क्या होता है, लीफ स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाता है और जीरोफाइटिक प्लांट जो होता है वो स्पाइन में मॉडिफाइड हो जाता है। ओके, एग्जांपल के लिए ऑप्सुनिया प्लांट एंड कैक्टस के अंदर आप देखेंगे। ओके, फ्लैसी लीफ जो मैंने आपको बताया ऑनियन और गार्लिक का इसका एग्जांपल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें आप पाइसम सटाइवा में देखेंगे, इसके अलावा ये कैक्टस में है और ये फ्लैशी लीफ है, ठीक है, जो कि लीफ के एक बेसिक मॉडिफिकेशंस है। चलिए, ओके, लीफ पिचेस मैंने आपको भी बताया, वो लीफ पिचेस वही है इंसेक्टिवोरा जिसमें आप ये देखेंगे, ये बेसिकली लीफ पिचेस के एग्जांपल्स है सारे वही। लीफ पिचेस इसमें क्या होता है कि लीफ का जो पूरा लेमिना होता है पिचेस एक पिच के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एक पिचर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लीफ रूट जिसमें कई बार क्या होता है कि इसमें लीफ होती है रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो जो ज्यादा वाटर के अमाउंट होती है, ज्यादा वाटर के एब्जॉर्ब करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो रूट प्रॉपर अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो इसलिए क्या होता है कि लाइक उसको रूट को भी मॉडिफाइड होना पड़ता है। तो देखेंगे यहाँ पे इसकी लीफ होती है वो रूट के अंदर मॉडिफाइड होकर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को मॉडिफाइड करती है, एग्जाम्पल के लिए साल्विना। ओके, अब आता है एक नया टर्म्स फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी में क्या होता है, हम क्या पढ़ते हैं कि स्टेम के ऊपर और किसी स्टेम की ब्रांच के ऊपर लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है, उसका पैटर्न क्या है। तो बेसिकली ये अरेंजमेंट क्या होता है, इसे क्या होता है कि जैसा बेस्ट अरेंजमेंट क्या होता है, ये अपने इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं कि जिससे कि अब लाइक जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसको इंक्रीज कर सके, इनफ कर सके। इंक्रीज क्या, उसको इनफ करें जिससे कि जो फूड का प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम अमाउंट में हो। ये तीन टाइप का मिलेगा, अल्टरनेटिव, अपोजिट एंड द होल। अपोजिट होल जो होता है। फाइलोटैक्सी में क्या होता है, अल्टरनेटिव मैनर होता है, जैसे देखेंगे आप एक ही लीफ नोड से केवल एक ही लीफ निकलती है और अल्टरनेटिव होता है, देखिए एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। एग्जांपल के लिए चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर प्लांट। ओके, इसे बोलते हैं अल्टरनेटिव फाइलोटैक्सी। लेकिन अगर आप वहां देखेंगे अपोजिट फाइलोटैक्सी जिसके अंदर एक नोड से दो लीफ निकलती हैं और दोनों अपोजिट होती हैं, ये देखिए दोनों अपोजिट होती हैं, एग्जांपल के लिए कैलाट्रोपिस एंड द गुआवा प्लांट। ओके, ओके, तो एम्स में एक बार एक क्वेश्चन आया था पहले कि असर्ज और रीजन में कि इन अपोजिट फाइलोटैक्सी ए पेयर ऑफ लीफ अराइज एज ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर। रीजन क्या है, अपोजिट फाइलोटैक्सी सीन इन अ चाइना रोज एंड ऑरेंजर। देखिए अगर आप देखेंगे अपोजिट फाइलोटैक्सी सीन इन अ चाइना रोज एंड द ऑरेंजर। असर्शन पूरा सही है, बिल्कुल सही है असर्शन, बट रीजन गलत, और रीजन वैसे भी गलत है क्योंकि जो चाइना रोज होता है उसके अंदर पाई जाती है आपकी अल्टरनेटिव, और अलेंडर जो एग्जांपल होता है वो होता है रोल फाइलोटैक्सी का एग्जांपल है। तो इसमें अगर आप देखेंगे असर्शन एंड रीजन बोथ आर राइट, दोनों बिल्कुल राइट नहीं है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग, बिल्कुल गलत नहीं है। असर्शन इज राइट बट रीजन इज रॉन्ग, वो भी नहीं है, क्योंकि उस कंडीशन में आता कि लाइक रीजन इज रॉन्ग, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। assertion and reason both are right and reason explain the assertion, ये बिल्कुल नहीं है क्योंकि पहली बात तो रीजन ही रॉन्ग है, तो उसको एक्सप्लेन करने का मतलब ही नहीं है, तो सही आंसर इसका सी है। ओके, इन दिस फाइलोटैक्सी क्या होता है कि इसमें एक ही लीफ से बहुत सारी लीफ निकलती हैं, उसको चारों तरफ से कवर कर लेती है, अम्ब्रेला टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाती है। एग्जांपल के लिए है एस्टोलिना, ओलेंडर एंड एनेरियम यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही है जिसमें हमने देखा लाइक हमने आज हम थोड़ा आगे बढ़े, लीफ के मॉडिफिकेशन देखे, लीफ के जो पार्ट्स के मॉडिफिकेशन देखे, फिर इसके बाद में लाइक इसके पार्ट्स के मॉडिफिकेशन के बाद में हमने फाइलोटैक्सी देखा जिसमें अल्टरनेटिव, अपोजिट ऑन द होल फाइलोटैक्सी हमने देखी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा हम और आगे स्टडी करेंगे इसके बारे में।
ओके, घर पे रहिए, खुश रहिए और अच्छे से स्टडी करते रहिए। धन्यवाद।